हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, कॉलेज का नाम रोशन करते रहिए और ख़ुद का, माँ बाप का, देश का नाम रोशन कीजिए। और हमारी स्पेशली हमारी ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन कीजिए तरक्की करने के साथ साथ। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on classical growth theory. In this topic we will discuss what is classical growth theory and understanding classical growth theory and history of classical growth theory, etc. Now first is, what is classical growth theory? The classical growth theory argue that economic growth will decrease or end because of an increasing population and limited resources. Classical growth theory economics believe that temporary increase in real GDP as person would cause a population explosion that would consequently decrease real GDP. इसमें जो रियल क्लासिकल जो ग्रोथ थ्योरी है वो कहते हैं कि जीडीपी में इंक्रीजमेंट, टेम्परेरी जीडीपी में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है पर पर्सन के अकॉर्डिंग, इट्स मीन्स तो एक्सप्लोरेशन होगा पॉपुलेशन का, जो रीजन होगा वो एक्सप्लोटेशन होगा पॉपुलेशन का, और जो जीडीपी दिखेगी हमारी वो घटती हुई जीडीपी दिखाई देगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, economic growth will decrease or end due to an increase in population and the existence of finite resources. Classical growth economic theory was developed by economics during the Industrial Revolution. Modern progress has proved classical growth theory wrong. क्लासिकल थ्योरी मीन्स मॉडर्न थ्योरी से पहले का जो टाइम था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले की जो थ्योरी डेवलप की गई थी एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने एंड मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने, ये सारी जो थ्योरी है ये क्लासिकल थ्योरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था उससे पहले की जो थ्योरी डेवलप हुई थी वो सारी की सारी थ्योरी क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी है। क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में उन्होंने बताया कि जीडीपी टेम्परेरी इंक्रीज हो रही है जीडीपी में, पर पर्सन जीडीपी में, तो ये कॉजेज होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो जीडीपी हमारी रियल जीडीपी होगी वो घटती हुई जीडीपी दिखेगी। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज आई थी हमारी ग्रोथ थ्योरीज, तो ये जो क्लासिकल थ्योरीज थी इनको रॉन्ग प्रूव कर दिया था उन्होंने। अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, economics behind classical growth theory develop an idea of an subsistence level of model the theory. Subsistence refers to the minimum amount of income required to survive. Income beyond the subsistence level, translated to profit, related to the concept was the manner in which different classes within society utilize their wages. For example, workers spend their wages on subsistence, landlords spend their earning on riotous living, and industries and reinvestment their profit into their ventures. जो क्लासिकल थ्योरी की बात करूँ तो इसमें जो आइडिया डेवलपमेंट हुए, सब्सिस्टेंस लेवल के मॉडल डेवलप हुए थे और उसके सिद्धांत थ्योरी डेवलप हुए थे, तो इसमें बताया गया था कि वर्कर्स उसकी जो वेजेज है उसको जो खर्च करेंगे सब्सिस्टेंस पर, और लैंडलॉर्ड स्पेंड कर रहे हैं उनकी अर्निंग पर, ऑन रोइटस लिविंग पर। जो इंडस्ट्रीज री इन्वेस्टेड है वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए वो वेंचर्स में या फिर शेयर्स में, डिवेंचर्स में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग कहते हैं। The economists believe that if real GDP rose above this subsistence level of income, that it would cause our population to increase and bring real GDP back down to the subsistence level. It was essentially an equilibrium level that real GDP would always revert to in this theory. Alternatively, if the real GDP fell below the subsistence level, parts of the population would die off and real income would rise back to the subsistence level.
Modern progress has proved classical growth economics strong. Even as population has multiplied, wage and economic growth has increased in tandem. Criticize of their classical growth economic theory say that it is authors fail to take into the account the role of technology in improving modern life. Other authors such as Karl Marx also pointed out other flaws with the capitalistic theory underlining classical growth theory. जो क्लासिकल थ्योरी ग्रोथ थ्योरी के जो फेवर में इकोनॉमिक्स थे वो कहते हैं कि अगर जीडीपी का रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि क्यों होगी, रीज़न दिया था उन्होंने कि अगर जनसंख्या में वृद्धि इसलिए होगी कि जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जब हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज होगी तो लोगों की रियल इनकम भी इंक्रीज होगी, तो वो अपने आराम के लिए, अपने वो रिलैक्स फील करने के लिए सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और रिलैक्स फील करने के बाद वो अपने काम पर कम से कम जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा हो जाएगा। दैन उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो पैसे वाले हो जाएंगे, तो उसके बाद वो जनसंख्या इंक्रीज़ करेंगे। तो फिर वापस से ये इसका जो जनसंख्या इंक्रीजमेंट होगा तो उसका वापस से इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी जीडीपी पर। जीडीपी जो रियल जीडीपी होगी वापस से नीचे गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने जो क्लासिकल थ्योरी थी, पुरानी जो थ्योरी थी, उन सब को रॉन्ग प्रूव किया। उन्होंने उन सब की आलोचना की बहुत अच्छे से, क्योंकि वो जो क्लासिकल जो थ्योरीज़ थी वो टेक्नोलॉजी के साथ अपना सेटलमेंट सेट नहीं कर पाए और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर नहीं चले, और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उन्होंने अपनी जो क्लासिकल थ्योरीज़ थी उनको इम्प्रूवमेंट के साथ डेवलप नहीं किया। इस वजह से ये फेल हो गई। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। Economics behind classical growth theory developed an idea of an subsistence level of model the theory. Subsistence referred to the minimum amount of income required to survive. Income beyond the subsistence level translated to profits. Related to this concept was the manner in which different classes within society utilize their wages. For example, workers spend their wages on subsistence, landlord spends their earning on riotous living, industrial investment profit. That economics classical growth theory was developed alongside the emerging conditions about the industrial revolution in Great Britain. हिस्ट्री हम क्लासिकल जो ग्रोथ थ्योरी थे उसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में बोले तो इंग्लैंड में, तब ये धीरे धीरे emerging कंडीशंस में डेवलप हुई थी। और इन फॉर्मेटिंग द थ्योरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स साउट टू प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द broad forces that influence economic growth and of the mechanism underlying the growth process. Accumulation and productive investment in the form of profit were seen as the main driving force. जो प्रॉफिट है उन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो प्रॉफिट होना था उसको मेन ड्राइविंग फोर्सेस माना इन लोगों ने। Hence chances in the rate of profit were a decisive reference point for an analysis of the long-term evolution of the economy. Analysis of the process of economic growth was a central focus of English classical economists, mostly notably Adam Smith, Thomas Malthus and David Ricardo. जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जो इंग्लिश इसमें के जो रिवोल्यूशन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तब स्पेशली केवल और केवल जो इंग्लिश क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे उन पर ही फोकस किया गया, उनकी बातें ही नोटिस की गई थी। मैं बात करूं जैसे कि एडम स्मिथ है, थॉमस माल्थस है, डेविड रिकार्डो है, इनकी बातें ही इन्होंने मानी, इनकी थ्योरी को ही इन्होंने प्रिपेयर किया। लिविंग इन द 18th and 19th century on the eve or in the midst of the industrial revolution, the goal of these economists was to develop a scientific explanation of the forces governing how their economic system was functioning at the time.
जो 18-19 जो सेंचुरीज थी उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था वर्ल्ड में, तो उसमें इकोनॉमिक्स का सबसे मेन काम था कि एक ऐसा कोई थ्योरी डेवलप की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ में कि पता लगाया जाए कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसको गवर्न कर रहे हैं फोर्सेस को, और किस जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कौन कौन से फंक्शंस है या कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके हमारे इकोनॉमी के फंक्शंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसका बारे में पता लगाया जाए। ये सबसे मेन फोकस था 18-19 सेंचुरी में। ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस involved in observed chances and the long run tendencies and outcomes to which they were leading. They attempt to demonstrate and promote the idea that individual initiative under freely competitive conditions to promote individual ends would produce a beneficial result to society as a whole. When while conflicting economic interests could be reconciled by the operation of competitive market forces and the limited activities of responsible governments, armed with their recognition, the accumulation and productive investment of a part of the social product is the main driving force behind economic growth, and that जो सोशल इकोनॉमी जो अपन है जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट था, सोशल प्रोडक्ट्स है, ये सबसे मेन उस टाइम 18-19 सेंचुरी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव था अपने वहाँ। ये जो हमारी इकोनॉमी है उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे। इकोनॉमी के जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट में सबसे बड़ा रोल था सोशल प्रोडक्ट्स का और जो प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट उसका। That a large portion of the social product was not as so well invested but was consumed unproductively. जो अनसोशल जो प्रोडक्ट थे, सोशल प्रोडक्ट, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जैसे ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के प्रोडक्शन, अमीर है तो अमीर लोगों के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन, इस तरीके से उस टाइम 18-19 सेंचुरी में प्रोडक्शन उसके ऊपर उसके बेसिस पर इन लोगों ने जो डेविड रिकार्डो है, एडम स्मिथ है, मैं बात करूँ माल्थस की, तो इन लोगों ने ये थ्योरी डेवलप की। केवल स्पेशली रिचर सेक्शन के ऊपर फोकस किया गया था उस टाइम, सिर्फ रिचर सेक्शन की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के सोशल प्रोडक्ट का के बेस पर एक हमारी जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लुएंसेस हो रहे थे उसके बेस पर क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ था 18-19 सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, जब उसकी वो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब की बात है ये। तो ये बात की हमने क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी। इसमें क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी अधिकतर जो इन फ्यूचर भी मॉडर्न इकोनॉमिक की बात करूँ, जब अब्राहम मार्शल आएंगे तो मार्शल है, पीगू है, ये सब जितनी भी जो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी इनको सबको रॉन्ग प्रूव करके खुद की नई एकदम मॉडर्न थ्योरी डेवलप करेंगे। सैमुअलसन है, ये सब लोग, तो ये इतने काम की नहीं है, बस पढ़नी है अपन को। इतनी अपने इकोनॉमी में भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स इनके जो है, इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ये कहीं रिपीट भी नहीं होती है, इतना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी नहीं आती है। जो कहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे वो अधिकतर हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थ्योरी है वहाँ से आते हैं। तो आपके सिलेबस में है तो इनको हमें पढ़ना है। मैं इसके बाद आपको एडम स्मिथ की जो क्लासिकल थ्योरी है, ग्रोथ थ्योरी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कार्डियन जो थ्योरी है डेविड रिकार्डो की, रिकार्डियन हो गई। उसके बाद में कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे बच्चों।